So, welcome back, my dear students, to the topic biomolecules. This is the chapter number 14 we are talking about, and there are several biomolecules which are required for the growth and development of cells in all the living organisms. So, living organisms, they require these biomolecules in order to maintain the growth and to maintain growth as well as for the development of new cells. Some of the biomolecules are carbohydrates, proteins, lipids, enzymes, nucleic acid. Out of that, we were talking about carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन हमने फाइनली कंसीडर किया था. What is that definition? Definition of carbohydrate is what? It is polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones. Polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones, and they are found to be optically active. They are optically active. You know the meaning of optical activity. Optically active, they are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones. This is the definition. What was the old definition of carbohydrate which was rejected? Hydrates of carbon. Yes, the old rejected definition of carbohydrate is that they are hydrates of carbon. They are hydrates of carbon. And the formula for hydrates of carbon, CxH2OY. And this was the rejected definition, and accepted definition is what? That carbohydrates are optically active polyhydroxyaldehydes or ketone. Polyhydroxyaldehydes or ketones. Okay, then we will see the classification of carbohydrate. Carbohydrates broadly classified into two types. What are they? Simple carbohydrates Simple and and complex. complex carbohydrate. Simple carbohydrates are known as monosaccharides. तो ये है Monosaccharides. यस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. Simple carbohydrates is what we call it as monosaccharides. Monosaccharides. And complex carbohydrates are polysaccharides. So monosaccharides or simple carbohydrates are those which does not hydrolyze further. Does not hydrolyze further into smaller carbohydrates. Into smaller carbohydrates. इसका मीनिंग क्या हो गया? कल हमने बताया था कि as monosaccharide does not hydrolyze further into smaller carbohydrates, that means they are the smallest, simplest, basic unit of carbohydrate. Basic units of carbohydrates. So basic units of carbohydrates, they cannot be further hydrolyzed. Whereas polysaccharides को देखते हैं बाद में, अभी monosaccharides को डेवलप करते हैं. That means इसमें एक ये लिख सकते हैं कि polysaccharides, they can be hydrolyzed further. They can be hydrolyzed further. Can be hydrolyzed further. ये बेसिक डिफरेंस हो गया इसमें. दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है
On what basis? On the basis of hydrolysis. So broad classification of carbohydrate is on the basis of hydrolysis. Monosaccharide cannot be further hydrolyzed. Polysaccharide can be further hydrolyzed. And this monosaccharide now can be divided into two types on the basis of. Can anybody say what will be the basis of classification of monosaccharide? That is based on functional group, that is aldehydes and ketones. तो if, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि डेफिनेशन में क्या लिखा है हमने कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. दैट मीन्स जो फर्दर क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, इट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप. इट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप. So further classification is based on functional group. If it has aldehyde functional group, aldehyde बेटा कैसे represent करते हैं? CHO से. और दूसरा हो जाएगा ketone. If they have ketone, polyhydroxy ketone. Ketone क्या है? C double bond O है ना? ये ketonic functional group है. तो aldehydes functional group is what we call as एल्डोसेस. और कीटोन फंक्शनल ग्रुप अगर रहेगा तो उसे कहेंगे कीटोसेस. So this is what the classification of monosaccharide on the basis of functional group. On the basis of functional group, this classification. Okay? Yes, please. Am I audible to everyone? Yes or no? Am I audible to everyone? हाँ जी. No? Why so? एक सेकेंड बेटा, इसको फिर से ऑन करता हूँ मैं. Now, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. वो क्या कॉल आया ना बीच में, तो फिर ये इसकी ऑडिबिलिटी कम हो जाती है, उसको ज्वाइन करना होता है. सो हम पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन. Carbohydrates are broadly classified into two types: simple carbohydrates and complex carbohydrate on the basis of hydrolysis. The simple carbohydrate, known as monosaccharide, cannot be further hydrolyzed into smaller carbohydrates, whereas the complex carbohydrate polysaccharide can be further hydrolyzed. Okay? Now, simple carbohydrate is classified into two types on the basis of their functional group. And what is that? If monosaccharide is having aldehyde functional group, will be called as aldoses. If monosaccharide is having ketonic group, will be called as ketoses. Now, these aldehydes and ketones are further subclassified on the basis of number of carbon atoms. Number of carbon atoms. तो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, आपको एक पूरा ट्री डायग्राम बनाना होगा इसका, है ना, क्लासिफिकेशन का. दैट टी डायग्राम वी विल सी. उस टी डायग्राम में ये सारे फैक्टर्स आते जाएंगे. तो लेट अस मूव फर्दर. एल्डोसिस एंड कीटोसिस. Aldoses, those monosaccharides which have aldehyde functional group are termed as aldoses,
and those monosaccharides which have ketonic functional group are termed as ketoses. अब एल्डोसिस और कीटोसिस में further classification on the basis of number of carbon atom. If they have 3 carbon atom, then एल्डोसिस का फॉर्मूला बनेगा C3H6O3. कीटोसिस का भी वही फॉर्मूला होगा C3H6O3. C3H6O3. एंड दिस, इसका बेटा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा अपने को. एल्डोसिस विथ 3 कार्बन एटम, वी गेट हियर द एग्जाम्पल इज ग्लिसरॉल्डिहाइड. ग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके. और कीटोसिस का जो एग्जाम्पल है वो है डाइहाइड्रोक्सी कीटोन. डाइहाइड्रोक्सी कीटोन या डाइहाइड्रोक्सी कीटोन. अब ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कैसा लिखना पड़ेगा अपने को? CH3CHOH CH2OH. वैसे आपको ये स्ट्रक्चर कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेंगे. ग्लिसरॉल्डिहाइड तो ये अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए और उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए. तो जो सेकेंड कार्बन वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, और जो थर्ड वाला रहेगा वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. तो ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड. अब डाइहाइड्रोक्सी कीटोन में क्या आएगा? कीटोनिक ग्रुप. जैसा हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था कि कीटोनिक ग्रुप इज नॉन टर्मिनल, तो वो बीच में आ जाएगा. स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप सभी लोग? Am I audible to everyone? Okay. So बेटा ये बीच बीच में मैं इंक्वायरी करते जाऊंगा, प्लीज गिव मी अ रिप्लाई, है ना, सो दैट कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को समझ में ना आए. तो क्या पढ़ा आपने? एल्डोसिस का फर्स्ट टाइप वी कॉल इट एज एल्डोट्रायोसिस. एल्डोट्रायोसिस. और कीटोसिस के लिए क्या बोलेंगे? कीटोट्रायोसिस. कीटोट्रायोसिस. तो aldosis and ketosis, if possess 3 carbon atom, aldosis with 3 carbon we call as aldotriosis, and if ketosis is having 3 carbon we call it as ketotriosis. और इसके एग्जाम्पल बने यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोट्रायोसिस में एग्जाम्पल बना डाइहाइड्रोक्सी कीटोन. तो ये क्लासिफिकेशन को और अभी आगे बढ़ाते हैं. थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से इरेज करता हूँ. बाद में एक बार फिर से इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे हम, जो फाइनली आपके सामने आ जाएगा. तो अभी हम एल्डोसिस एंड कीटोसिस पे फोकस करते हैं. एल्डोसिस एंड कीटोसिस. If 3 carbon atom, then it is known as aldotriosis. Similarly, ketone का C3 जो रहेगा उसे हम कहेंगे कीटोट्रायोसिस. दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा. तो एल्डोट्रायोसिस एंड एल्डोकीटोसिस का कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O3. और बेटा एग्जाम्पल हमने लिखा एल्डोसिस का ग्लिसरॉल्डिहाइड, और एग्जाम्पल कीटोट्रायोसिस का फॉर्मूला वही C3H6O3 इज डाइहाइड्रोक्सी कीटोन. ओके. नेक्स्ट, इफ देयर आर 4 कार्बन एटम, तो फिर इसे क्या कहेंगे? चलो आपको बोलना है. एल्डोसिस 4 कार्बन अगर होगा तो क्या बोलेंगे उसे?
और कीटोन रहेगा तो क्या बोलेंगे? यस, एल्डोटेट्रोसिस एंड कीटोटेट्रोसिस. एल्डोटेट्रोसिस एंड कीटोटेट्रोसिस. C4 के लिए कीटोटेट्रोसिस. इसके एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको. एल्डोटेट्रोसिस फॉर्मूला क्या बनेगा दोनों के लिए कॉमन? C4H8O4. इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एरिथ्रोज. Erythros, and this is erythrulose. Erythros and erythrulose. Erythros is eldotetrosis and erythrulose is ketotetrosis. Next, if C5, then eldopentosis, and here C5 ketopentosis. फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन. क्या आ जाएगा कॉमन फॉर्मूला? हाँ जी, कॉमन फॉर्मूला क्या होगा बेटा? जनरल फॉर्मूला C5 आएगा ना. अरे कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है? सब सो गए क्या? इतना बोरिंग है क्या ये? नो सर. फिर बेटा बोलो ना राजा, कैसे आप लोग? हाँ, ये भी नहीं बोल रही है. कौन है एस वाली? हाँ, साक्षी ढोरे. ये भी सो रही है क्या आज? सर आपकी आवाज बहुत फेंट है. तेज आवाज आ रही है? बस ज्यादा जोश में फेंट हो रही है. फेंट हो रही है बीच बीच में. अब नहीं होगी वो फेंट में. हाँ, मैं थोड़ा सा वो नीचे जब यहाँ यानी बैठ के जब लिखता हूँ मैं, तब थोड़ा स्पीकर से दूर चला जाता हूँ. then that happens. Okay, Shreya Raut, are you there? Shreya है ना? श्रेया, you are there? हाँ, श्रुति कौन है? साक्षी ढोरे. तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C5H10O5. अरे आपकी आवाज तो बहुत अच्छी आती है इसमें. C5H10O5. अब इसका एग्जाम्पल है राइबोज. एंड हियर एग्जाम्पल इज राइबुलोज. राइबोज एंड राइबुलोज. अब नेक्स्ट आ जाएगा 6 कार्बन वाला. नेक्स्ट विल बी 6 कार्बन, और वो वहां पर हम आके रुक जाएंगे. अब 6 वाला क्या होगा? एल्डोहेक्सोसिस. और ये आएगा C6H12O6. आगे आपका जाना पहचाना फॉर्मूला एल्डोहेक्सोसिस. कीटोन रहेगा तो कीटोहेक्सोसिस. एल्डोहेक्सोसिस, कीटोहेक्सोसिस. इसका एग्जाम्पल बनेगा ग्लूकोज. ये पता है आपको. और कीटोहेक्सोसिस का एग्जाम्पल क्या बनेगा? फ्रुक्टोज. तो फ्रुक्टोज इज हैविंग कीटोनिक ग्रुप, ग्लूकोज इज हैविंग अल्डिहाइडिक ग्रुप. ओके, तो ये बेटा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा. कहाँ से शुरू किया हमने? कि मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप. और फंक्शनल ग्रुप क्या? अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसे एल्डोसिस बोलेंगे, और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो कीटोसिस कहेंगे. एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड बिगिंस फ्रॉम द 3rd कार्बन ऑनवर्ड्स. उसके फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन होना है ना.
तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है इट बिगिंस फ्रॉम द थर्ड कार्बन. C3H6O3 is the first monosaccharide. C3H6O3 is the first monosaccharide. We call it as aldotrioses and ketotrioses. और उसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और कीटोन, जो आप लिखे यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी कीटोन या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी लिख सकते हैं. एग्जाम्पल आ गया C3H6O3. देन ये चारों अभी आपके सामने हैं. नेक्स्ट कम्स एल्डोसेस में एल्डोटेट्रोसेस. एल्डो 3 कार्बन वाला आ गया ये, और 4 कार्बन का यानी इसको इरेज कर सकता मैं. हाँ जी, 4 कार्बन. तो एल्डोटेट्रोसेस एंड कीटोटेट्रोसेस, फॉर्मूला C4H8O4. तो फॉर्मूला इज C4H8O4. एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, है ना. ये मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक वैसे क्वेश्चन में आ सकता है. तो एल्डोटेट्रोसेस इज एरिथ्रोस एंड कीटोटेट्रोसेस इज एरिथ्रियोलोज. 5 कार्बन एटम एल्डोपेंटोसेस. Ketopentoses, formula is C5H10O5, and example for aldopentoses is ribose and ketopentoses is ribulose. तो थोड़ा कुछ सिमिलर नोमेनक्लेचर है ना, एरिथ्रोज, एरिथ्रियोलोज, राइबोज, राइब्यूलोज. तो some kind of symmetry to remember them. And next C6, it is aldohexoses and ketohexoses having formula C6H12O6. और aldohexoses में glucose is the example and ketohexoses fructose is the example. करेक्ट है. तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हमारे सामने आ गया मोनोसेकेराइड का, है ना. तो अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने आता है, राइट अ नोट ऑन मोनोसेकेराइड, तो आप उसमें ये सारी चीजें लिखेंगे. तो आज का होमवर्क का पहला क्वेश्चन, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड क्वेश्चन, राइट a note on monosaccharides. Write a note on monosaccharides. ठीक है. तो monosaccharides are the smallest, simplest basic unit of carbohydrate which cannot be further hydrolyzed to smaller carbohydrates. They are classified into 2 types on the basis of functional group. If they had aldehyde, we call as aldoses. If they have ketonic functional group, we call it as ketoses. Then C3, C4, C5, C6, उसके सभी एग्जाम्पल और फॉर्मूले के साथ में. तो ये 2 क्वेश्चन अभी आपके पास में आ गए. नाउ वी विल मूव टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. Complex carbohydrates are classified into 2 types. One is oligosaccharides and another is polysaccharides. Oligosaccharides and polysaccharides. तभी हमने सिर्फ polysaccharides लिखा था. तो अभी यहाँ देखते हैं that complex carbohydrates classified into 2 types, oligosaccharides and polysaccharides. Oligosaccharides can be further hydrolyzed, है ना. ये तो दोनों के लिए हो गया. On hydrolysis gives
2 to 10 monosaccharides. 2 to 10 monosaccharides. On hydrolysis, this oligosaccharide gives 2 to 10 monosaccharides. चलिए इसी को आगे डेवलप करते हैं, फिर पॉलीसेकेराइड्स के तरफ जाएंगे. सो इट कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज. यस, ऑलिगोसेकेराइड्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. इट कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज एंड ऑन हाइड्रोलिसिस it gives 2 to 10 molecules of monosaccharide. If it gives 2 monosaccharide, we call it as disaccharides. It is called as disaccharide. It gives 2 monosaccharide. On hydrolysis, it gives 2 monosaccharides. सही है, 2 monosaccharides. इसके एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला, डाइसेकेराइड का फॉर्मूला C12H22O11. C12H22O11. Am I audible? मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ तो सुना यार. Am I audible clearly now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay बेटा. तो disaccharide is a type of oligosaccharide which on hydrolysis gives 2 monosaccharide and the formula is C12H22O11. और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है वो है सुक्रोज. द एग्जाम्पल इज सुक्रोज. फॉर्मूला वही रहेगा C12H2211. सेकेंड है माल्टोज C12H22O11 and third is lactose. So these three are disaccharide. They are the monosaccharide. तो अब ये disaccharide है, 2 monosaccharide देगा, तो कौन से 2 monosaccharide रहेंगे? ये important point बन गया यहाँ पर. तो इसको जरा दूसरे इंक से लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं. We will see this. तो क्या देखते हैं हम कि सुक्रोज is a disaccharide. On hydrolysis, sucrose gives 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. है ना? It gives glucose plus fructose. माल्टोज क्या देगा? 2 मोनोसेकेराइड देगा, दोनों भी ग्लूकोज रहेंगे. लैक्टोज 2 मोनोसेकेराइड देगा, एक रहेगा ग्लूकोज और दूसरा आ जाएगा गैलेक्टोज. द नेक्स्ट इज गैलेक्टोज. तो नेक्स्ट glucose plus galactose. So this is what the disaccharide we get, which is nothing but a oligosaccharide. अब फर्स्ट disaccharide हो गया, सेकंड हम जो लेंगे वो रहेगा trisaccharide. On hydrolysis it will give 3 monosaccharide. 3 मोनोसेकेराइड कौन से, क्या एग्जाम्पल रहेगा वो देखते हैं. फॉर्मूला क्या बनेगा? कैन यू से फॉर्मूला फॉर ट्राइसेकेराइड which on hydrolysis gives 3 monosaccharide. It gives 3 monosaccharides. हाँ बेटा, चलो कौन बोल रहा है? जल्दी से, सोना नहीं है, जागते रहना है. 3 मोनोसेकेराइड. C18 आ जाएगा. C18H32O16. This is the formula for trisaccharide. C18H32O16. This is the formula for trisaccharide and इसका एग्जाम्पल है रफीकीनोज. है ना, रफीकी नाक, रेफिनोज. रफी की स्पेलिंग यही लिखते हैं हम लोग, RAFFI. रफीकीनोज, रेफिनोज. C18H32O16 is the trisaccharide. अब ये ट्राइसेकेराइड है, 3 मोनोसेकेराइड कौन कौन से रहेंगे?
ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज। वेरी गुड, कोई इशू नहीं है आपको याद रखने के लिए, है ना, कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज ये तीन आपको यहाँ पर मोनोसेकेराइड मिलेंगे। दिस विल बी गिवन बाय रैफिनोज विच इज नथिंग बट अ ट्राइसेकेराइड। एक लेते हैं और टेट्रासेकेराइड। Tetrasaccharide will give what? Give 4 monosaccharide. On hydrolysis gives 4 monosaccharide. Done? It on hydrolysis gives 4 monosaccharide. What could be the formula for this tetrasaccharide? Is C32 H42O21 बराबर आ जाएगा C24। अरे रे 8 6 चौक 24 होते ना, 8 चौक 32 क्यों लिया? 24 ना, 42 का उल्टा। हाँ, C24H42O21 दिस इज टेट्रासेकेराइड। ओके, तो टेट्रासेकेराइड का फॉर्मूला लिख दिया हमने, और इसका जो नाम है वो है स्टैक्योज। जरा बोलो तो एक बार इसको, प्रोनाउंस इट। स्टैक्योज है ना, तो जरा स्टाइल से बोलना पड़ेगा इसको, है ना आपको जरा। स्टैक्योज, यू नो, टू बी कॉल्ड एज स्टैक्योज। स्टैक्योज, हाँ, C24H42O21 ये फॉर्मूला और नाम याद करना है हमको। ये एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, अब एग्जाम में आते नहीं आते दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेट्रासेकेराइड, व्हाट इज द नेम ऑफ अ टेट्रासेकेराइड, या फिर रेफिनो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेफिनोज। तो आपको रेफिनोज का फॉर्मूला C18H32O16 याद रखना होगा। सर O24 चाहिए ना? नहीं, ये कैसा, इसकी हाइड्रोलिसिस करते ना, तो हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता। देखो यहाँ समझा देता हूँ वो क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे आपने पहले लिखा डाइसेकेराइड C12H22O11, ये बेटा हाइड्रोलिसिस के बाद देता ना मोनोसेकेराइड। तो हाइड्रोलिसिस वाटर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सही है, देख लो समझ लो उसको, इसीलिए फॉर्मूले में आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, अब ये कितना हो गया, बेसिकली C12H22O12 ऐसा बना ना। तो ये लिखेंगे क्या हम, नहीं, हम क्या लिखेंगे, C12H22O11 on hydrolysis gives this। तो इसमें मैंने क्या किया, एक 24 लिखना पड़ेगा, सॉरी 12 दूनी 24 आ जाएगा। ओके, तो C12H24O12 ये नहीं लिखते, C12H22O11 on hydrolysis gives 2 monosaccharide। सही है, फिर 23 चाहिए ना? नहीं ना रे, देख अब क्या लिखते हैं, C18 लगो, C18H32O16, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल से काम नहीं चलता, आपको 3 मोनोसेकेराइड मिलेंगे, C6H12O6 3 टाइम्स, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज, एक गैलेक्टोज। सर समझा। अब समझा, तो अब C24 को बोल, चल C24H42O21, इसमें कितने वाटर, 3H2O, इसीलिए C6H12O6 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये 4 टाइम्स 4 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। वो 4 कौन से मोनोसेकेराइड है ये लिखना पड़ेगा हमें,
है ना। तो एक तो रहेगा ग्लूकोज, दूसरा होगा फ्रुक्टोज और 2 moles ऑफ गैलेक्टोज, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टैकियोज। रेफिनोज के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। 3 टाइम्स किया आपने। स्टैकियोज 4 टाइम्स किया। तो 4 कौन कौन से मोनोसेकेराइड है? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल of fructose and 2 moles of galactose. That will make a stachyose, which is a 2 minutes. हाँ, which is a tetrasaccharide. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर मैं। राइट अ नोट ऑन ओलिगोसैकेराइड्स। आपने मोनोसेकेराइड लिख लिया है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर मुझे आप सबमिट करेंगे। पेपर मैं कल डालता हूं ऑन ओलिगोसैकेराइड्स, और इसका मेमोरी, इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे हम, ट्री डायग्राम बाद में। 3 क्वेश्चन। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? राइट अ नोट ऑन मोनोसेकेराइड, राइट अ नोट ऑन ओलिगोसैकेराइड। तो ये 3 के आंसर देंगे मुझे आज रात में, या बहुत हो गया तो कल मॉर्निंग में। ठीक है सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। जी बेटा, ओके। बाय सर।